सो वेलकम बैक, वी आर लाइव अगेन इंस्पायर जोन मैगजीन पर। जरनेश खान हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी सा टेक्निकल इशू आया, लेकिन हमने उसको कोशिश की है कि अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाए। और लेट्स सी, नाउ वी आर गोइंग टू इंटरव्यू जानिश खान फॉर इंस्पायर जोन मैगजीन. एज आई हैव already told you, she's a model, she's an actress, and she has now become an influencer as well. social media पर, instagram पर इनकी जो following है, और जो YouTube चैनल इनका इस वक्त है उसमें वो व्लॉगिंग भी करती हैं, और बहुत सारा काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, बहुत कम वक्त में जो है अपना एक मकाम जो उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर बनाया है. सो लेट्स सी इफ शी कैन हेयर अस नाउ जस्ट टेकिंग हर लाइव. So Zarnish Khan, for the Inspire Zone magazine audience and everyone out there who loves Zarnish Khan's work, she's with us now. Zarnish, can you hear me now? Yeah, perfectly. That's Thank you. great. Thank you for your time for Inspire Zone magazine. And firstly, I would just like to ask you about your journey in this industry, from starting with modeling and acting, and then later on now an influencer, a social media personality, a huge celebrity on the social media. How's it going? Thank you so much for the wonderful introduction. My journey started with acting, and I would say modeling and interviews and commercial and being an influencer came much, much later in my career. I would just say like a couple of months ago. In fact, last year. उससे पहले मुझे एक्चुअली मेरी फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं थी इतना ज्यादा करने की. I was very young when I started working, and of course, like almost all the families, सबके concerns होते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सेफ हो. सबसे पहले आपको उस इंडस्ट्री की नो हाउ हो कि काम कैसे होता है, लोग कैसे हैं. और जब आप थोड़ा सा एक ट्रस्ट एलिमेंट आ जाए उसमें, that's when you should sort of extend it to another level. So that's when everything else started. Or by far, my journey, alhamdulillah, I can say was absolutely flawless and wonderful. I've happened to had work with one of the best people, be it my directors, my co-actors, everybody I have met along the way have been really nice. So yeah, alhamdulillah, really great. I'm very, very grateful. That's great. And even lately, you are traveling a lot as well. Corona se pehle bhi, I've seen a few of your vlogs from Dubai. Tell us about your traveling, craze, that you like to travel a lot. And I've seen your interviews as well. Yes, traveling is one of my biggest passions. मुझे I think जो अपनी सबसे पहला शौक याद होगा बचपन से लेके, that was traveling and outing itself. Like it doesn't really have to be another country. मुझे तो घर से बाहर बत्तियां दिखने के लिए मिल जाए तो that's like मेरी बहुत entertainment होती है. So having to explore the world on my own is absolutely wonderful. It's one of my favorite things to do. और मेरे fans अक्सर ये कहते रहते हैं कि they want to know more about my life, where I go, what I do in my free time. So I was like, um, इतना सब लोग चाहते हैं and they want to be a part of my life. So why not, let's share this journey of mine with them. So I started making my vlogs. I initiated my YouTube channel, and I was like, "ठीक है, this should be fun. This should be shared with my fans." And now wherever I go, I like to explore. खुद तो मुझे बस शौक है ही, लेकिन मुझे ये भी शौक है कि मैं लोगों को भी बता सकूं कि किन जगहों पे जाया जा सकता है. And I think one of the most interesting things about my traveling vlogs is जब भी आप किसी जगह पे जा रहे होते हैं तो आप एक बहुत एक there's a sort of uncertainty when it comes to food, when it comes to making your itinerary, because you don't know कि किस जगह पे जाना चाहिए, what kind of budget to look at. So मैं जब भी travel vlogs बना रही होती हूँ, I tell people कि ये वो जगहें हैं, ये वो चीजें हैं जो आप easily कर सकते हैं incorporate अपने trip में, being staying in your budget. You see what I'm saying? So that is like Yes, a very fun economical, element yeah. for my family as well. Yeah. एग्जैक्टली और ट्रैवलिंग करते हुए इकोनॉमी जो है, और खासतौर पे हमारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस इस वक्त हमें भी देख रही है, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेटस ऑफ द सोसाइटी. सो सबके लिए आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, विच इज वेरी ग्रेट. ये भी बताइएगा कि जर्नेश, आपने मॉडलिंग भी की है, और एक्टिंग के ऊपर अब कौन से प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है आपके, और इश्क ज़हे नसीब में बहुत अच्छा कैरेक्टर किया. इसके अलावा स्टार्ट्स अपना बताएं, इस वक्त क्या चलने वाला है और क्या आगे आने वाला है, और आपके फैंस देख सकते हैं.
अच्छा, एक तो मेरी चीज है कि जब तक मेरा कोई प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हो जाता, आई डोंट टॉक अबाउट इट, बिकॉज वो जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो खत्म हो जाता है, लोगों की क्यूरियोसिटी, आई लाइक टू कीप इट दैट वे। सो समथिंग रियली एक्साइटिंग इज कमिंग रियल सून, इतना तो मैं आपको दे सकती हूँ। और बाकी जब मेरी रिलीज डेट करीब होगी तब मैं आपको प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताऊंगी। अबाउट द वंस दैट आई हैव डन इन द पास्ट, आई थिंक उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और आई थिंक क्वारंटीन डेज में जब कुछ और करने के लिए नहीं था और हम लोग कहीं जा नहीं रहे थे, तो अपेरेंटली उस टाइम पर वो सारे चल रहे थे, एंड देन मेरे कुछ पुराने भी उसी टाइम पे ऑन एयर हो गए। सो यू नो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई वाज गेटिंग, आई वाज लाइक चलो, यू नो, you're keeping yourself safe, लेकिन वो भी एक चल रहा था, that was great actually. Okay, now tell us something about now what's your take about, because you're very opinionative and you have your own opinion and your views about certain things. You know, the talk of the town is feminism. So, what's your take on feminism? Do you believe you are a feminist? And what's feminism for the layman out there listening to you right now? मैं जब भी फेमिनिज्म की बात करती हूँ, मैं आई लाइक टू यूज द टर्म विमेन एम्पावरमेंट। दैट इज व्हाट आई मोस्ट बिलीव इन, दैट इज व्हाट आई जेन्युइनली सपोर्ट। मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपने मुल्क की औरतों को एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि कदम से कदम मिलाकर ही आप चल सकते हैं। पहले जमाने कुछ और थे, जिस टाइम पे हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी स्ट्रांग थी, जहां पर हमारे घर के मर्द सिर्फ काम करते थे या उनके पास इनफ एक्सपोजर था, तो वो काफी था पूरी फैमिली को रन करने के लिए। अब मैं थोड़ा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री को भी मद्देनजर रखते हुए ये समझती हूँ कि औरतों को भी एक्सपोजर मिलना चाहिए। दे शुड बी एबल टू वर्क एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज इन वट एवर लिटिल वे दे कैन। लेकिन ये जो टर्म फेमिनिज्म है, मुझे एंड अगेन, बिफोर आई से एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, आईड लाइक टू पुट अ डिस्क्लेमर। हर बंदे की अपनी एक राय होती है और हर बंदे को हक है अपनी राय रखने का। सो देयर इज Obviously, नथिंग अगेंस्ट एनीवन हु बिलीव्स अदरवाइज। मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म, इट डिमांड्स gender equality, which I don't believe we can get, which I don't believe is something that should happen. क्यों? जब भी दुनिया में आपका, देखिए, अगर मैं दुनियावी नजरिए से मेरे ही राय की बात करूं या आपकी राय की बात करूं, तो कुछ भी सही या गलत हो सकता है। मेरे लिए आपकी राय सही नहीं हो सकती, आपके लिए मेरी राय नहीं। तो हम एक कन्विक्टेड कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? हमें कैसे पता चलेगा कि सही बात क्या है? जब भी मैं किसी ऐसे डिलेमा में फंसती हूँ, आई लुक अप टू माई रिलीजन, आई सी व्हाट कुरान सेज, आई सी हमारा रिलीजन इस बारे में क्या कहता है। और हमारा रिलीजन क्लियरली कहता है कि मर्द और औरत इक्वल नहीं है, ना हो सकते हैं। उन दोनों की अपनी अपनी जगह है। औरतों के हकूक पे बहुत एम्फेसाइज किया है कुरान ने, और वहीं पर ही इक्वालिटी नहीं है। तो मैं इसी चीज पे बिलीव करती हूँ, मैं इसी तरीके से मुझे रेस किया गया है, इसी तरीके से मेरा ब्रॉटअप है कि मैं अपने बाप की, अपने शौहर की, अपने भाई की, अपने घर के मर्दों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हैविंग सेड दैट, अ लॉट ऑफ पीपल से जब भी आप इस्लाम को बीच में लेकर आते हैं, तो लोग एकदम से ना एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप तो जीन्स पैंट पहन के बैठी हैं, आप इस्लाम की बातें कर रही हैं। I would like to say that religion is a very personal matter, और मैं अपने आप को इतना क्रेडिट जरूर दूंगी कि मैं किसी भी गलत चीज को सही कहती नहीं हूँ। और हाँ, मुझे इंडोर्स भी पता नहीं है करती। कि my dressing might not be appropriate according to our religion, and I hope and I pray कि कोई भी चीज जो मैं अपनी जिंदगी में गलत करती हूँ या जो अल्लाह मियाँ की नजर से गलत है, अल्लाह मियाँ मुझे हिदायत दे और मैं ठीक रास्ते पे जाऊं। But that should not stop me from believing in the right thing. And for me, the right thing is कि आपके घर वालों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। My take on feminism says कि it has nothing to do with rebelliousness. ठीक है, आपको खुद सरी की इजाजत नहीं है। मेरा बाप अगर मुझे आज कॉल करके मना कर दे कि जर्निश, आई डोंट थिंक यू शुड बी वॉकिंग एनी मोर, मैं उनको ये रिस्पेक्ट दूंगी, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। या फॉर इंस्टेंस, इफ माई हस्बैंड wants to stop me from working, then first of all it becomes his responsibility entirely, and if he's doing everything for me, तो क्या मैं उनकी बात नहीं सुन सकती? क्या मैं उनको ये रिस्पेक्ट नहीं दे सकती? या बहुत सारी औरतें आजकल हर जगह, हर इंटरव्यू में सोच रही हूँ कि हम क्यों खाना बनाएं, हम क्यों घर के काम करें, हम इसके लिए तो पैदा नहीं हुए, हमें और भी कुछ करना है। आई एग्री, ड्रीम्स होना, उन्हें परस्यू करना इज वेरी गुड, लेकिन इसमें कोई खुदसरी है, इसमें कोई रिबेलियसनेस की तो बात ही नहीं। इसमें तो बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि रिस्पेक्ट, प्यार मोहब्बत का भी तो है। मेरा दिल करता है मैं अपने शौहर के लिए कुछ करूं, मेरा दिल करता है एग्जैक्टली। मैं उनकी बात करूं, गिव्स मी दैट हैप्पीनेस। तो इसमें उस हैप्पीनेस को फील करें, उसमें
ये फेमिनिज्म और ये औरतों के बारे में जो बात होती है, ये लो तबके की औरतों के बारे में बात होती है, या उन औरतों के बारे में बात होती है जिन पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, जिनको पीटा जा रहा है उनके शौहरों की तरफ से, जिनके बेसिक राइट्स उनको नहीं मिल रहे, जो वाकई इन जहां प्रॉब्लम्स में हैं। एग्जैक्टली। वुमेन इन्फेंटिसाइडल है, जहां पर ये उन उन तबकों के मसले हैं। हम पढ़े लिखे लोगों के, जहाँ पे हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे ये मसले नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इस बात को हवा बनाना चाहिए या इतना एग्रेसिव हीट देनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो, एंड दैट इज जस्ट माय ओपिनियन। ओ यस, एंड आप अपना ओपिनियन रख सकती हैं, जैसे आपने कहा कि सब अपना अपना ओपिनियन रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई किसी को कुछ सही लगता है, किसी को कुछ सही लगता है। एग्जैक्टली। थोड़ा सा सीरियस हो गया और हमारे फैंस, लेकिन अच्छी बात है, एक आपने अच्छा मैसेज पहुंचाया और आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिलीवर किया, विच इज वेरी ग्रेट। क्योंकि कुरान का जैसे जिक्र आता है या इस्लामिक वैल्यूज का जिक्र आता है तो लोग थोड़े से हो जाते हैं कि ये कैसे बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो स्टीरियोटाइपिंग की हुई है बेसिकली, कि कोई किसी और टॉपिक के बारे में नहीं पर्सनल डिबेट हो करे, जाते हम हैं ना बात करें। लोग एकदम से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उस तरह की बातें होती हैं। बहरहाल अब हम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे और हम अपने फैंस के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे अब कि आपके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आपने कहा कि आप नहीं बताना चाहती अभी, आप उस तरह से उनको डिस्कस नहीं करती। मूवीज वगैरह की कभी आपको ऑफर हुई है या आपने कभी सोचा कि आप मूवीज करें? और एक जो कहते हैं कि एक माफियाज होते हैं, मीडिया में भी है, कास्टिंग काउच है, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो जो न्यू कमर्स हैं, खासतौर पे द गर्ल्स, आपकी क्या एडवाइस हो? अच्छा, ये जो मूवी माफिया या कास्टिंग काउच, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। मैं इसके बारे में इसलिए बात नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। ऑल्सो बिकॉज शायद इसकी ये वजह भी है कि मैं थोड़ा बहुत सिलेक्टिव काम करती हूँ और मैं अपने काम से काम रखती हूँ। मैंने कभी भी पलट के ज्यादा घुस के देखने की कोशिश नहीं की कि आसपास क्या हो रहा है। एंड आई विल बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट अबाउट दिस। हो सकता है होता हो, पर मैं लिटरली कुछ लोग एक्चुअली माइंड भी कर जाते हैं कि व्हाई डू आई माइंड माई बिजनेस सो मच, कि कहीं इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। एटीट्यूड प्रॉब्लम्स नहीं है, मुझे सिर्फ ये होता है कि आई शुड डू माई बेस्ट एंड आई शुड ओनली डू व्हाट आई एम मेंट टू डू, एंड देन आई गो होम, घरेलू टाइम। तो मुझे नहीं पता होता होगा कहीं पर। व्हेन इट कम्स टू मूवीज एंड ऑफर्स, हाँ जी, काफी दफा बहुत बहुत ऑफर्स हुई हैं। इनफैक्ट मुझे इंडिया से भी ऑफर हुई हैं। द रीजन अभी तक मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया या मैंने मूवी नहीं की, इनिशियली इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने आपको अब शुरू में इंटरव्यू के बताया था कि मुझे परमिशन नहीं थी। आई हैड टू बी वेरी सिलेक्टिव। मैं वही प्रोजेक्ट्स करती थी जो मेरे हस्बैंड और मेरे पापा की तरफ से मुझे परमिशन मिलती थी कि हाँ, दीज आर फाइन, द स्टोरी इज फाइन, यू कैन डू इट। फिर आहिस्ता आहिस्ता परमिशन जितनी जितनी मिलना शुरू हुई, मैंने करना शुरू किया काम। मूवी के हवाले से भी अब मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होगी, एज लॉन्ग एज इट हैज द एलिमेंट ऑफ डिसेंसी एंड द स्क्रिप्ट इज नाइस। पर्सनल रीजन पिक या कोई मूवी चूज ना करने की ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रोल कितना हो या कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, पर इम्पैक्टफुल हो। You see what I'm saying? My character should have something challenging to offer, something जो मुझे करने में भी मजा आए। वो मुझे बात नहीं लगी अभी तक किसी स्क्रिप्ट में। So देखिए, जब लगेगी तो I might. Oh, that's great. So you are very directed towards your career कि आपने क्या करना है, किस तरह से चूज करनी है स्क्रिप्ट, which is great. आगे बढ़ते हुए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी सारी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे अलग है, जो टीवी की ऑडियंस है, जो फैमिली वुमेन है, जो खवातीन है, जो लड़कियां हैं, जो आपको देखती हैं, जो पसंद करती हैं, जो ड्रामास देखते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? इंस्पायर जोन मैगजीन का प्लेटफॉर्म आपके साथ है। um, पैगाम क्या है मेरा? Keep watching you, um, obviously. Well, I would just like to thank everybody a lot for all the love and support. जितना प्यार सब लोग देते हैं, हर ओपिनियन, हर चीज जो वो हमसे कहते हैं उसमें हमारी नजर होती है। और इनफैक्ट आई थिंक मैं बहुत ज्यादा अपने फैंस को पॉजिटिवली देखती हूँ। कोई भी कमेंट्स इनफैक्ट कभी कोई नेगेटिव भी दे रहे हो तो मैं उसकी तरफ आई ट्राई टू बी एज पॉजिटिव अबाउट इट एज आई कैन बी। The only thing I'd like to say, जो मेरा सबके लिए, not just the women who watch me, everybody who is here right now is, मैं लोगों को नेगेटिविटी के लिए ब्लेम इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव हो गया। तो एवरीबडी हैज दिस फ्रस्ट्रेशन इनसाइड ऑफ देम जो वो वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड। लेकिन व्हेन वी से लोगों की वजह से हमारे साथ ये होता है, वी आर द लोग।
we are those people. So Exactly. अपने आप को चेंज करें, try and be more positive about life, about people itself. मैंने एक चीज बहुत recently practice करने की कोशिश की अपने आप पर. You know, when you're looking at stuff and you're just making random comments, sometimes just for fun's sake. That is when I find out that is when I realized this is what we do as well on an individual level, and we blame other people for doing it when we feel bad about it. So why not stopping it at your own level? अपने आप को पहले रोकें. So please guys, negativity को खत्म करें. कोई चीज बुरी लग रही है आपको, there's a polite way to put your point across. Let's try that first, ठीक है? और कोशिश करें कि जिस चीज से आपको डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या वो चीज आपको हैम्पर नहीं कर रही है, तो ना ही कमेंट करें उसके बारे में. यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन नेगेटिविटी ना फैलाएं. बस दैट्स ऑल आई वांट टू से. स्टे हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी ऑल द टाइम, और कोशिश करें जितनी पॉजिटिविटी और खुशियां आप बांट सकते हैं वो करें. आपकी जिंदगी का ये पर्पस होना चाहिए. In the end, one most important thing, Hakukullah se pehle Hakukul baad aate hain. So please never forget that. Exactly. When you're hurting someone, when you're being ruthless and brutal with your comments and with your thoughts, ye yaad rakhein ki that also is a guna. That is also something jo achhi baat nahi hai. That makes you a bad person. So that's it. Such a great message. Be happy, say no to negativity. इंस्पायर जोन मैगजीन के लिए आप हमारे देखने वालों को और जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, आप अगर एक कॉल आउट दे दें कि टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एंड योर लास्ट वर्ड्स एज वेल. Inspire Zone Magazine for Inspire Zone Magazine, I give a big shout out. Thank you guys for having me here. Guys, go please follow their page, and lots of luck to you guys. Before I say goodbye here, my new song Behta Darya is out, so everybody who is here right now needs to go watch it. Leave your comments कि आप लोगों को कैसा लगा. I hope you guys liked it, but this was something I was extremely nervous about, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अलग सी चीज थी ट्राई करने के लिए. But I've given it my best shot, and so far people are loving it, which is totally overwhelming for me. Yes, I've seen that. In fact, I missed that question asking you about this because the brand is involved as well. But you would like to say something about the new song and a new genre that you have opted for, singing. Great. Yeah. Just that कि ये बिल्कुल एक नई चीज है मेरे लिए भी. अभी काफी ओवरवेलमिंग है the response that I'm getting, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पता नहीं लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, पसंद आएगा कि नहीं आएगा. But so far people have been so kind and they're loving it, and you have no idea how special it makes me feel. So a big hug for everybody out there, and for those who haven't checked it out yet, it's called Behta Darya. It's on YouTube. Go check it out now. Thank you very much, Behta Darya. Do watch it, and thank you, Zanish Khan, for your time and taking out time for Inspire Zone Magazine fans. And we love you all. And there are a lot of people who loves you and who wants to see you succeeding more in your life and your career. Thank you very much. Thank you. Take care. Bye bye. Bye. Thank you.